Hare Krishna
ठाकुर भक्ति विनोद की, श्री सुरभि कुंज की, स्वानंद सुगध कुंज की। हरे कृष्ण। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगबराय। আমরা গুরু বৈষ্ণবগণের আনুগত্যে পরিক্রমা করতে করতে যে স্থানে উপস্থিত হয়েছি, এই স্থান ছিল ভক্তি বিনোদ ঠাকুরের ভজন কুটি এবং সমাধিস্থল। এখানকে বলা হয় সানন্দ সুখদ কুঞ্জ। এখানে আমাদের পরম গুরুদেব ছিল ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহাজনের সেবার অবদান এবং বৈশিষ্ট্য আছে। এখানকার স্থানের সম্বন্ধে সর্বপ্রথম গোবিন্দ মহারাজ আপনাদের কথা শোনাবেন। শ্রী গোবিন্দ মহারাজ। গুরু বৈষ্ণবের আনুগত্যে পরিক্রমা করতে করতে আমরা বর্তমানে যে স্থানে উপস্থিত হয়েছি, সেটি হচ্ছে ভক্তি বিনোদ ঠাকুরের ভজনস্থলী ও সমাধি মন্দির। ওরা 7-8 জন লোক আছে। ওরা 7-8 জন লোক আছে মাত্র। ওরা 7-8 জন। হ্যাঁ, ওদের অনেক যাচ্ছে। ভক্তি বিনোদ ঠাকুর প্রথম জীবনে ব্যারিস্টার ছিলেন। প্রথম জীবনে ব্যারিস্টার ছিলেন। গুরুতেই পুরীতে ছিলেন। পুরী থেকে পুরীতেই প্রভুপাদের আবির্ভাব হয়। পুরীতে ওখানেই ভক্তি বিনোদ ঠাকুরের ওখানে প্রভুপাদের আবির্ভাব হয়। পরবর্তীকালে ভক্তিনাথ ঠাকুর নবদ্বীপে আসেন এবং এই গতিমে এখানেই ভজন করতেন। এইখানে ভজন করতে করতে একদিন রাত্রে যখন ছাদের উপরে পাইকারি করতে করতে হরিনাম করতেন, তখন দেখতেন দূরে যেখানে বসছি ওখানেই রাতের অন্ধকারে কিন্তু বিশাল গতি, আর বহু লোক হরিনাম কীর্তন করতে সংকীর্তন ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। তো ভক্তিনাথ ঠাকুর চিন্তা করে ওখানে তো কিছু কোনো দেখি নাই। পরের দিন যখন গেলেন ওখানে জিজ্ঞেস করলেন সবাইকে, মুসলমান ছিল সব ওইখানে বের করেছি। মুসলমানদের জিজ্ঞেস করতে বলছে, তোমরা এখানে কোনো চাষ করো না কেন? বলছে, এখানে আমরা চাষ করি না কেন? গাই লাগাই, সবজি বীজ লাগাই না কেন? ও তুলসী গাছ হয়ে যায়। এই জন্য আমরা এই জায়গাটা চাষ করি না, যে ফাঁক ফাঁক করে রেখে দিয়ে তুলসী গাছ করছি। প্রথম ভক্তিনাথ ঠাকুর চিন্তা করলে লেখাটা খুব পছন্দ করে। তোমরা মুখে হরিনাম এখানে লেখা ছিল। পত্রিকা অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শিশির কুমার ঘোষ এবং তদানীন্তন কালের ব্রিটিশ থেকে তিনি ম্যাপ আনিয়েছিলেন এই মায়াপ্রভুর সম্পর্কে আবিষ্কার করার জন্যে। সেই ম্যাপ দেখে এবং শিশির কুমার ঘোষ এবং অন্যান্য বহু বিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে
তিনি এখানে আসেন এবং দেখেন যে হ্যাঁ, তারপরে তিনি কি করলেন, সেই বৃন্দাবন থেকে জগন্নাথ দাস বাবাজি মহারাজ তখন চলতে পারতেন না, জগন্নাথ দাস বাবাজি মহারাজের সেবক বিহারীলাল তাকে ওই ঝুড়িতে করে বসে বসে নিয়ে যেতেন, এখানে ওখানে নিয়ে যেতেন। তো ঝুড়িতে করে বসিয়ে বিহারীলাল জগন্নাথ দাস বাবাজি মহারাজকে নিয়ে এলেন এবং জগন্নাথ দাস বাবাজি মহারাজকে নিয়ে যখন ওই যোগপীঠে গিয়েছেন, ওখানে যে বাবাজি মহারাজ নিজে চলতে পারেন না, চোখে দেখতে পান না, তিনি ওখানে হঠাৎ ঝুড়ির থেকে লাম্ফ দিয়ে পড়েই এই আমার গৌরের স্থান, এই আমার গৌরের স্থান বলে ওখানে উদ্দণ্ড নৃত্য করতে শুরু করলেন। তো তখন থেকেই ওই মহাপ্রভুর আবির্ভাব স্থান আবিষ্কার করলেন। এই জন্য ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে বলা হয় মহাপ্রভুর জন্মস্থানের আবিষ্কারক, এবং তিনি হচ্ছেন শুদ্ধ ভক্তির ভগীরথ। ভগীরথ যেমন গঙ্গাকে আনয়ন করেছিলেন তার পূর্বপুরুষগণের উদ্ধারের জন্য, ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ঠিক তদ্রূপ মহাপ্রভুর পরবর্তীকালে আমাদের এই সমাজের যে অবস্থা ছিল লুপ্তপ্রায়, সমস্ত ধর্মযাজন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। হ্যাঁ, কুকুর বিড়ালের বিয়ে হতো, গাছের বিয়ে হতো, বাঁদরের বিয়ে হতো, ওতে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচা করে আনন্দ করতে হলো। সেই সময়েই ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই ধাম মহাপ্রভুর পরবর্তীকালে তিনি এই স্থান আবিষ্কার করেন এবং গৌড়ীয় জগতের যত গ্রন্থ এবং কীর্তনাদি, এই আমরা যে কীর্তনগুলো করি অধিকাংশ কীর্তনই ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচিত, এবং বহু গ্রন্থ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের যেগুলো আমাদের নিত্য নৈমিত্তিকভাবে পাঠ করা হয়ে থাকে। তো ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে এই জন্য বলা হয় শুদ্ধ ভগীরথ, গৌড়ীয় শুদ্ধ ভক্তির ভগীরথ বলা হয় এই জন্য। আমি এখানে রাখছি। বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধু। আপনারা সকলে আমাদের কীর্তনের পাশে আসুন, কীর্তনের পৃথিবীতে আসুন। আমরা এখন অন্য প্রফেসরে যাচ্ছি। बोलो भक्तिविनोद ठाकुर जी की, भक्ति भगीरथ भक्तिविनोद ठाकुर जी की। हम लोग नवदीप परिक्रमा करते करते गुरु वैष्णव के अनुगत्य में आज का पंचम दिवस, ये गोद्रुम पंचम दिवस में अंतिम दिवस जहां हम लोग पहुंचे हैं, ये है स्वानंद सुखद कुंज गोद्रुम द्वीप के अंतर्गत हम लोग आए। गोद्रुम द्वीप में पहले सुरभि कुंज गए और यहाँ पर आए हैं भक्तिविनोद ठाकुर जी की भजन कुटीर। भक्तिविनोद ठाकुर जी पहले डिप्टी मजिस्ट्रेट जगन्नाथपुरी में थे, रिटायर होने के बाद यहाँ पर उन्होंने ये भजन कुटीर बांध करके यही भजन करते थे और उनकी समाधि भी यही है। तो भक्तिविनोद ठाकुर जी चैतन्य महाप्रभु के धारा में उनका नाम ही भक्ति विनोद, इसलिए हम लोग की भक्ति विनोद धारा है। भक्ति चैतन्य भक्ति विनोद और उनके ही पुत्र बिमला प्रसाद जिनका जन्म पुरी में हुआ था, बाद में गौड़ीय मठ के जनक, गौड़ीय मठ के संस्थापक श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। जिस समय भक्तिविनोद ठाकुर जी यहाँ भजन करते थे, चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान लुप्त हो चुका था, कोई स्थान नहीं वहाँ, तो सब मुसलमान पड़ा, मुसलमानों लोगों का सब जंगल जंगल में था। तो भक्तिविनोद ठाकुर जी ने यहाँ पर जब रहते थे, कलकत्ता के बड़े बड़े इंजीनियरों से एक नक्शा बना करके बड़े चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितमृत, भक्ति रत्नाकर आदि ग्रंथों से चैतन्य महाप्रभु की जन्मस्थली कहाँ है उसका अनुसंधान कर रहे थे। तो एक दिन यहाँ पर जब जाकर के ऊपर में हरिनाम कर रहे थे तो देखा वो बीच में ये सरस्वती खड़गी नदी कहते इसको, जालंगी या खड़िया नदी, उसके उस पार में देखा सुंदर बहुत सारा उजाला निकल रहे हैं, एकदम उजाला निकल रहे हैं। तो देखा हम लोग नवदीप में वहाँ पर जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की भजन कुटी समाधि मंदिर देखा।
तो भक्तिविनोद ठाकुर वो बहुत बड़े सिद्ध महात्मा थे, 144 साल उम्र थी। सारे वैष्णवों को बुला करके वो भक्तिविनोद ठाकुर जी जा करके वहाँ चले गए। वो चल नहीं पा रहे थे, उनको टोकरी में पीठ में पीछे बिठा करके ले जाना पड़ता था। तो इस प्रकार वहाँ पर जब गए, उनकी आंखों की पपड़ियाँ ये एकदम ऐसे नीचे आंखों के ऊपर आ गई थी। उनको देखने के लिए ऐसा ऊपर उठाना पड़ता था, इतने वृद्ध थे। उनको ले जाकर के वहाँ सारे वैष्णवों को ले जाकर भक्तिविनोद ठाकुर जब वहाँ पर गए तो देखा उन्होंने वहाँ पर टोकरी से कूद करके नाचने लगे, बोले यही हमारा गौरांग महाप्रभु का जन्म स्थान है, यही गौरांग महाप्रभु का जन्म स्थान है। इस प्रकार हमारे भक्तिविनोद ठाकुर जी ने चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान को पुनः प्रकाशित किया, क्योंकि काल का प्रभाव ऐसा होता है, सब ढक जाता है। ये तो बीच में गंगा बहते, कभी इधर कभी उधर। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने चैतन्य महाप्रभु के जितने गोस्वामी के ग्रंथ थे 100 ग्रंथ लगभग उन्हें प्रकाशित किए। और उनके जब ये वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान उन्हें प्रकाशित किया तो अपने ही पुत्र विमला प्रसाद, जिनका नाम बाद में भक्ति सिद्धांत सरस्वती हुआ, उनको वहाँ पर बिठा करके वहाँ पर छोटी भजन कुटी बांध करके वहाँ पर धीरे धीरे चैतन्य मठ आदि सब वहाँ पर देखा तो खाली वे दूसरा कुछ नहीं, एक जगह मुसलमान पूरे बैठे थे, वहाँ पर खाली एक तुलसी का कुछ पेड़ आते थे। वहाँ पर उन्होंने पूछा यहाँ पर क्या है ये, तो बोले हम लोग दूसरा पेड़ लगाते हैं, कोई आता ही नहीं है, खाली तुलसी का पेड़ आता है। तो उन्होंने महाप्रभु का जन्म स्थान जो अभी जोगपीठ जिसको कहते हैं, अंतर्द्वीप के अंदर में जोगपीठ में जहाँ महाप्रभु का जन्म हुआ, जहाँ सची माता और जगन्नाथ मिश्र का भवन था, वही जो महाप्रभु का जन्म स्थान जिसको जोगपीठ मायापुर जिन्होंने फिर से प्रकाशित किया। इस प्रकार उन्होंने भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बहुत बड़े डिप्टी मैजिस्ट्रेट थे। देखो घर में रहते हुए भी उन्होंने भक्तिविनोद भवन वहाँ पर जगन्नाथपुर में भी उनका भजन कुटीर था। रिटायर होने के बाद यहाँ भी भजन कुटीर बांध करके यहाँ भजन करते थे, उनकी समाधि है। और इस प्रकार यहाँ पर उनके लिए ही रेल लाइन यहाँ तक ले आए, रेलवे लाइन। ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में, ये 1918 के समय में, 1918 में उनका अंतिम समाधि हुआ था। उसके पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट से यहाँ पर रेल लाइन मंगाई थी, कृष्णा नगर से यहाँ तक रेल लाइन आई। देखो सामने रेल लाइन पड़ी है। तो भक्तिविनोद ठाकुर में पढ़े लिखे तो थे ही, ब्रिटिश गवर्नमेंट में उस डिप्टी मैजिस्ट्रेट थे। बाद में बहुत जगह उनका जन्म स्थान भी यही है, नदिया में। तो इस प्रकार भक्तिविनोद ठाकुर यहाँ पर भजन कुटी है, वो भक्ति भागीरथ है, भक्ति धारा उन्होंने लाने के लिए चैतन्य महाप्रभु के सारे जितने ग्रंथ लिखे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने यहाँ पर प्रेस खोल के कृष्णानगर में, मायापुर में उनके सारे ग्रंथों को प्रकाशित किया। सज्जन तोषणी नामक एक बंगला पत्रिका निकालते थे। उन्होंने कलकत्ता में जाकर के विश्व वैष्णव राज सभा की स्थापना की और बहुत सारे महाप्रभु के ग्रंथ आदि प्रकाशित करते थे। घर घर में जाकर के वो अपने आप को कहते हैं हम नाम हट्ट के झाड़ूदार हैं। गांव गांव में जाकर के उन्होंने नाम हट्ट का प्रचार किया, संगठन बनाए, सब गांव गांव में हरिनाम संकीर्तन कराते थे। अपने कहते हैं कि हम ये नाम हट्ट के झाड़ूदार हैं। इस प्रकार उन्होंने गांव गांव शहर शहर में सर्वत्र जाकर के महाप्रभु के वाणी का प्रचार किया। उसके बाद उनके पुत्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने मूल मठ चैतन्य मठ की शाखा स्थापन करके सारे संसार में अभी जो गौड़ीय मठ देख रहे हैं वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के वो पिताजी भी थे। इस प्रकार हमें भक्तिविनोद ठाकुर या उनकी समाधि है, उनके चरणों में नमस्कार प्रणाम करते हैं और वो हमारे ऊपर भी कृपा करें। और वो ब्रज लीला की कमल मंजरी है, तो इसलिए उन्होंने जो भजन किया उस प्रकार जिस प्रकार भजन किया वो भजन सभी के लिए स्मरणीय है, वंदनीय है, अनुकरणीय है। वो कहते थे कि मैं जैसा किया, सब लोग कहते हैं विदेशी फिलोसोफर कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा मत चलो, मैं जो कहता हूँ वैसा वैसा चलो। भक्तिविनोद ठाकुर कहता है नहीं, मैं जो कहता हूँ और मैं करता हूँ वैसा करो। कुछ लोग तो ये करते हैं, आचरण करते हैं, किंतु उसका पालन नहीं करते। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने खुद भजन करके, जब नौकरी में थे तभी उन्होंने ग्रंथ लिखना आरंभ कर दिया था। सब घर घर में जाके चैतन्य चरित्र का पाठ करते, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके पीछे पीछे अपने माथे पे ग्रंथ लेके जाते। ऐसा उन्होंने प्रचार करके अभी जो कुछ हम लोग अभी देख रहे चैतन्य महाप्रभु का सब कुछ वैभव, ये उन्हीं महापुरुष की कृपा है। वो हमारे भक्तिविनोद ठाकुर की कृपा करे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हरे कृष्ण।
হরে কৃষ্ণ। আমরা যেখানে এসে উপস্থিত হয়েছি, এখানে আমি পরম গুরুদেবের কিছু সেবার বৈশিষ্ট্য আপনাদের জানিয়ে দিই। পরম গুরুদেব ছিল ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ। সন্ন্যাসের পূর্বের নাম ছিল বিনোদ বিহারী ব্রহ্মচারী। ভক্তি বিনোদ ঠাকুরের সুপুত্র বিমলা প্রসাদ, ওনার এক ছেলের নাম ছিল ললিতা প্রসাদ। বিমলা প্রসাদ পরবর্তীকালে ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদ হন, যিনি গৌড়ীয় মঠের জনক বা প্রতিষ্ঠাতা। একদিন প্রভুপাদ চৈতন্য মঠে বলছেন, এখানে এমন কেউ নাই যে ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সেবা ললিতা প্রসাদের হাত থেকে আমার হাতে এনে দেয়। পরম গুরুদেব চুপচাপ থাকতেন, বেশি বলতেন না, কাজ করে দেখাতেন। বলছেন, প্রভুপাদ আপনার যখন ইচ্ছা হয়েছে, কাজ হয়েই গেছে। ফর্মালিটি উইল টেক প্লেস, টাইম উইল টেল। কি করলেন উনি? তখনকার দিনে লাঠিয়াল ছিল খুব, লাঠি নিয়ে খেলা করতো। এমন এক্সপার্ট, তীর ধনুষ ওরাকে লাগবে না এমন ছিল। লাঠিয়ালকে ভাড়ায় নিয়েছেন, নিয়ে বলেছেন, দেখো তোমরা চলে যাও ওখানে গিয়ে বলবে যে ললিতা প্রসাদ এখানে থাকতে পারবে না, যদি এখানে না যায় জীবনে মেরে দেবো একবারে। আর বলছেন, দেখ তুই বলবি না আমি তো হচ্ছে শ্রেষ্ঠ, আমি মারবো, বলবে আমি মারবো, কিন্তু মারবি না, ভয় দেখাবি খুব। এমন ভয় দেখাবি যেমন ইসকে ভয় দেখিয়েছিল আমাদের ঘটোৎকচ, দুর্যোধনকে ভয় দেখাবি, কিন্তু মারবি না। যদি আর শেষ পর্যন্ত না হয় তো প্রহার এনে ধনঞ্জয় করে দিবি, করে দিবি। বললো আমি বল, তুই আমার সঙ্গে লড়, যদি আমাকে হার দাঁড়িস তোকে মারবি। এটা পাঠিয়ে দিয়েছেন। আর সঙ্গে নিয়ে উনি কি করছেন, যে ব্রহ্মচারীকে সঙ্গে নিয়ে ওখানে কি নিয়েছেন, ওখানে অর্চনের যে সামগ্রী দরকার, মঠবাস করার জন্য যেসব জিনিস নিয়ে আসছেন, একটু পরে এসে পৌঁছেছেন। এই লাঠি খেলা আরম্ভ করেছে, এই ওকে মারবো, এই ওকে মারবো। 10-12 জন লোক অবাক কি হলো, বলছে এখান থেকে ললিতা প্রসাদ না পালিয়ে গেলে জীবনে মেরে দেবো ওকে একবারে। কি ভেবে রেখেছে কি, এই স্থান প্রভুপাদের হাতে থাকবেই। তার খুবই করছে, বলে এই তুই কি মারবি ওকে? আমি মারবো, আমি তো হচ্ছে শ্রেষ্ঠ। বলে না আমি শ্রেষ্ঠ, তা আমার সাথে লড়। মক ফাইট করছে, করে ললিতা দেখে সব দেখে তো মেরে দিবে, পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে আছে। জ পলায়তি সজীবতী, সে পালিয়ে গেছে। প্রভু বিনোদ বিহারী এসেছেন, বাবু বিনোদ বাবু কাজ হয়ে গেছে। কি রক্তপাত করছিস? না না না, আপনি বুদ্ধি দিয়ে কাজ হয়ে গেছে। ভক্তি ঠাকুর কি করলেন, সরি বিনোদ বিহারী কি করলেন, নিজের গুরু ভাইকে এখানে রেখে দিয়ে সব সেবায় লাগিয়ে আবার ফিরে গেলেন। প্রভুপাদ আপনার ইচ্ছাতে কাজ হয়ে গেছে। এই আমাদের বিনোদ বিহারী ব্রহ্মচারী, আমাদের দাদুর সেবা বৈশিষ্ট্য परम गुरुदेव। भक्ति विनोद ठाकुर को सप्तम गोस्वामी कहा जाता है। क्यों? सप्तम गोस्वामी श्रीमान महाप्रभु रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को 4 दायित्व दिया था। लुप्त तीर्थ उद्धार, श्री विग्रह प्रकाश, भक्ति ग्रंथ प्रणयन, वैष्णव सदाचार ग्रंथ प्रणयन, 4 दायित्व दिया था। ये सब लोगों ने रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी सब 4 दायित्व को पालन किया था। सप्तम षड़ गोस्वामी के उपरांत उसके बाद 7th गोस्वामी भक्ति विनोद ठाकुर को कहा जाता है। क्या किया भक्ति विनोद ठाकुर ने? ये क्या किया? महाप्रभु के धाम का प्रकाश किया। उनके पहले किसी ने धाम प्रकाश नहीं किया, इसलिए धाम प्रकाशक सप्तम गोस्वामी भक्ति विनोद ठाकुर की जय। की हलो साउंड बंद हलो केन? हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरि बोल हरे कृष्ण। भक्ति हरिदेव करूँ का सत्यदेव करूँ? मशीन मशीन हुआ क्या? धाम प्रकाश किया, महाप्रभु के जन्म स्थान श्री विग्रह प्रकाश। क्या किया? द्वापर युग में आराध्य थे कौन? जुगल किशोर। और कलि युग में कलौ संकीर्तन प्राय यजंति ही सुमेधसः। जो बुद्धिमान व्यक्ति निरपराध व्यक्ति होंगे क्या करेंगे? और महाप्रभु का भजन करेंगे, गौरदादा की सेवा प्रकाश की। दूसरा तीसरा भक्ति ग्रंथ प्रणयन,
भक्ति ठाकुर 100 ग्रंथों का प्रणयन किया। उनमें सर्वश्रेष्ठ कृति उनका क्या है? जैव धर्म। एकदम लोएस्ट स्टेज से लेकर के टॉप स्टेज तक दिखाया। ये है तीसरा। चौथा है वैष्णव सिद्धांत माला, ये वैष्णव सदाचार के बारे में प्रकाश किया। ये 4 काम करने के कारण तदानीन्तन वैष्णव समाज उनको 7th व 7th गोस्वामी नाम के द्वारा उनको ऊपर विभूषित किया। आज तक उसके बाद कोई 8th गोस्वामी हुआ नहीं। अब उनके बारे में बहुत कुछ कहने का है। हम लोग को भूख भी लगी है और जाना भी है उधर भी, और सब लोग हरे कथा कहेंगे। भक्ति में ठाकुर विष्णु ने कितने सुंदर स्तुति किया, शाम को बताएंगे। ऐसे ही उनका इतना महिमा नहीं है, शायद आप लोग जानते नहीं, पता नहीं कितने सुंदर नृसिंहदेव का स्तुति आज शाम को उसके लिए बताएंगे। मुरारी प्रभु, सीतानाथ प्रभु, मान प्रभुपाल की रवना करो। আমরা এখান থেকে সোজা আমঘাটায় যাব। আমঘাটে ওখানে আমঘাটায় প্রসাদ দেওয়া হবে। তারপর ওখান থেকে প্রসাদ পাওয়ার পর ধীরে ধীরে আমরা হরিহর ক্ষেত্র নৃসিংহপল্লীর দিকে রওনা হব। হরে কৃষ্ণ।